आपके सवालों का स्वागत है। अगर सवाल इससे जुड़े हुए हों तो बहुत अनुग्रहित रहूंगी। क्या क्लैरिफाई करेंगे क्या कि जो मुस्लिम लीग की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं या जिस मुस्लिम लीग की बात आपने अभी की 1940 में, वो मुस्लिम लीग जिन्ना की थी, और जिस मुस्लिम लीग से आपका गठबंधन है केरल में वो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है। मैं सवाल का जवाब दूंगी, लेकिन मैं पहले प्राइम मिनिस्टर के स्टेटमेंट की बात करूंगी। और प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट इतना घटिया और इतना शर्मनाक है कि उनको थोड़ा आत्मचिंतन करना चाहिए। नरेंद्र मोदी भाजपा के प्रचारक मात्र नहीं है, नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री पद की कुछ गरिमा होती है, प्रधानमंत्री पद की कुछ मर्यादा होती है, लेकिन प्रधानमंत्री गरिमा और मर्यादा को ताक पर रखकर लगातार बोलते हैं, सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं और फिर इस तरह की बातें करते हैं। क्या उनको हमारे मैनिफेस्टो में दिख रहा है? उनको हमारे मैनिफेस्टो से क्या दिक्कत है? क्या गरीबों की, आदिवासियों की, युवाओं की, महिलाओं की, किसानों के हक की बात करना गलत है? और अगर गलत है तो यह गलती हम बार बार करेंगे। बताएं कहां किसकी छाप दिख रही है? क्या मोदी जी ने हमारे मैनिफेस्टो का एक पेज भी पढ़ा है? या उनकी आईटी सेल के गुर्गों ने जो व्हाट्सएप पे चलाया, जो आईटी सेल पे चलाया, वो बोल देते हैं? तो मैं क्यों ना मानूं कि वो जो घटिया व्हाट्सएप आपके फोन पर आते हैं वो खुद नरेंद्र मोदी जी बैठकर लिखते हैं। 18-18 घंटे देश के लिए काम नहीं करते हैं, 18-18 घंटे यही घटिया चीजें लिखने में बिताते हैं, 18-18 घंटे व्हाट्सएप फॉरवर्ड लिखते हैं, 18-18 घंटे ये नापाक बातें, ये घटिया बातें करते हैं। ये असलियत है। मैम, ma'am, the same allegations have been also leveled by the BJP president JP Nadda, in which he said that in 1929 it was Muslim League who had promised about the reservation on the basis of religion, and that is what Congress is also repeating. So he is saying that Congress only believes in appeasement politics, and he also mentioned that what was the reason that when Rahul Gandhi went to Wayanad for his nomination, Congress party's flags were not there, and he said that this clearly shows Congress supports Muslim League only. I first want to make a very strong statement on the BJP president, Mr. Nadda. Mr. Nadda's utility in the BJP is to go and receive the Prime Minister when he comes from his overseas tour. He should choose not to make these silly statements because he exposes his absolute political and moral bankruptcy. That's the first statement I want to make. The second statement that I would want to make is that when India was fighting against the British, and when India was saying do or die, and when the Quit India movement was in progress, why did your political ideologue Shama Prasad Mukherjee write to the British to curb the do or die movement? Why did he choose to run the governments with Muslim League in Northwest Frontier Province, in Sindh and in Bengal, when Congress governments had already resigned? So I do believe that the BJP president knows very little, should speak a little less. That's the first point I want to make. The second point that I want to make is, as far as Wayanad is concerned, or as far as any other state of India is concerned, why do you think the Prime Minister is using this language? Or why do you think Mr. Nadda is making all those silly allegations? Because Mr. Nadda sees a looming and a largely looming defeat. The reality is, our internal surveys and BJP's internal surveys are bang on. 180 is what they are at, and that tally is dwindling. And anything else that they are saying is basically distracting from the issues that really matter. I challenge Mr. Nadda to go on any stage, his party stage, a rally, a political fora, a channel like yours. Get your editor to interview Mr. Nadda and ask him to speak for 2 minutes on unemployment. Ask him to speak for 2 minutes on price rise. Ask him to speak for 2 minutes on crime against women. Ask him to speak for 2 minutes as far as the farmer's plight is concerned. I bet my bottom dollar on it, he will not be able to say a word. And that is the reality of the last 10 years. मैंने अपने शुरुआत में ये कह दिया था। ओके, तो मैम जो आप लोग आपत्ति दर्ज करा रहे हैं कि प्रधानमंत्री का जो बयान है वो विभाजनकारी और सांप्रदायिक एक किस्म से है, तो क्या इसकी शिकायत आप लोग चुनाव आयोग से करने पर विचार कर रहे हैं? यस मैम, ये जो मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग के हर नियम, हर कानून को ताक पर रखकर नरेंद्र मोदी इस बार प्रचार कर रहे हैं, उनके मंत्री इस बार वक्तव्य दे रहे हैं। चाहे वो सेना के इस्तेमाल की बात हो, चाहे मोदी जी अलग अलग वेशभूषा में दिख रहे हो, असलियत यह है कि देश की जनता समझ गई है कि राजा जो है वो प्रजा को भटका रहा है।
ये प्रजातंत्र है, हम जनता हैं, हम वोट देकर अपनी सरकार चुनते हैं, हमें भेड़ बकरी समझने की गलती मत कीजिए। और हर उस नियम का जो उल्लंघन हो रहा है, हम लगातार चुनाव आयोग के पास जा रहे हैं, इस पर भी जाएंगे, अन्य चीजों पर भी जाएंगे। और हमारी अपेक्षा और आशा और विश्वास है कि एक निष्पक्ष संस्था चुनाव आयोग, जिसके ऊपर दारोमदार है, जिसके ऊपर जिम्मेदारी है इस देश में निष्पक्ष फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की, वो जरूर इन बातों को संज्ञान में लेगी और इस पर एक्शन लेगी। ईडब्ल्यूएस पे आप लोगों ने जो बात की अपने घोषणा पत्र में, ये कहा गया कि जो 10% है उसको हम थोड़ा स्ट्रेच करके बाकी लोगों को देंगे। तो जो नहीं, हमने ये नहीं कहा कि हम नहीं, स्ट्रेच करके इसमें ऐसी भाषा ये कहा गया है कि 10% आरक्षण को बिना किसी भेदभाव के सभी जाति और समुदाय के लोगों को लागू करेंगे। नहीं, तो जब हम, अब आपका सवाल हो गया हो तो मैं जवाब थोड़ा दे सा सकती हूँ। पूछ लूं? जी बिल्कुल पूछिए। अभी जो सवर्ण के लोग हैं, बीजेपी ने उनको जो 10% दिया, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, तो कहीं ना कहीं रिजर्वेशन तो वो भी डिजर्व करते हैं। तो अब इससे ऐसा मैसेज नहीं जा रहा कि कांग्रेस ने मतलब कांग्रेस हमको 10% मिला उसको भी छीन के और हमारे पास से ले जाना चाहती है? आप मुझे समझदार पत्रकार लगते हैं। सोशियो इकोनॉमिक सेंसस का क्या मतलब होता है, सामाजिक और आर्थिक सेंसस का क्या मतलब है? उसमें सिर्फ आदिवासी, दलित या पिछड़ों का आंकड़ा नहीं आएगा। उसमें मैंने अपने वक्तव्य में भी बोला था, शायद आप देर से आए या आपने नहीं सुन पाया, कि गरीब जनरल कास्ट के भी जो समाज के हाशिए पर आज हैं, जिनको कुछ ना कुछ सहायता मिलनी चाहिए, जिनको रिजर्वेशन थोड़ा बहुत मिलना चाहिए, हम बिल्कुल उनके हक की बात करते हैं। मेरे नेता एक बात कहते हैं और वो बात दोहराना जरूरी है। आपको पैर में चोट लग जाए, आप पर प्लास्टर लगेगा या बैंडेज लगेगा या कास्ट लगेगा, इसका निर्णय डॉक्टर खुद नहीं कर सकता है। इसका निर्णय तब होगा जब एक्सरे होगा। उस एक्सरे में पता चलेगा आपका लिगामेंट टेयर हुआ है, आपका हेयरलाइन फ्रैक्चर है, आपकी हड्डी टूटकर अलग हो गई और उस हिसाब से उसका इलाज होगा। तो एक्सरे जो है वही है सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। सामाजिक और आर्थिक कास्ट सेंसस जब तक नहीं होगा, नहीं पता चलेगा कि किसको आरक्षण मिलना चाहिए, किसको कौन सी सुविधा मिलनी चाहिए। इसमें बिल्कुल जनरल कास्ट के वो गरीब लोग भी इन्वॉल्व हैं जिनको आरक्षण मिलना चाहिए। हम उसकी बिल्कुल पैरवी करते हैं। आपकी ये बात, मुझे ऐसा लगता है शायद आप लेट आए, आपने मेरा वक्तव्य नहीं सुना, उसका नतीजा है। आपका ये सवाल जिस दिन हमारा घोषणा पत्र जारी हुआ था, उस दिन घोषणा पत्र के जो चीफ आर्किटेक्ट हैं श्री चिदम्बरम जी से भी पूछा गया था और मुझे लगता है उन्होंने इसका बिल्कुल स्पष्ट जवाब दिया था। और उस जवाब में उन्होंने जो कहा था वो मैं दोहरा देती हूँ। उन्होंने कहा था, और ये बिल्कुल सच बात है, कि हिमाचल में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में हमने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करी। देश इसके पक्ष में है और हम इसको आगे भी लागू करने के पक्ष में हैं। लेकिन सरकार ने समय रहते हुए इससे एक सीख ली। उन्होंने एक कमेटी का गठन किया जो ओपीएस और एनपीएस के प्रोज एंड कॉन्स को देखकर एक सॉल्यूशन निकाल रही है। तो जब सॉल्यूशन आ रहा है तो हम उसके बारे में मुझे ऐसा लगता है कि हमारे काम से वो सॉल्यूशन आ रहा है, तो सॉल्यूशन का इंतजार करते हैं, इसलिए हमने इस पर टिप्पणी नहीं की। अभी दूसरा पूछ ले, फिर आपके पास। मैम, आपके पुराने सहयोगी हैं जो बीजेपी जा चुके अभी हैं, रुक जाइए, अगर इस पर किसी को सवाल है प्रधानमंत्री जी के घटिया बयान पे। मैनिफेस्टो को लेकर है। उन्होंने आज एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो है वो सिर्फ एक ही इंसान लिखता है और वो इंसान जो है वो आज तक सिर्फ एक पीए रह चुका है और वही इंसान जो है कांग्रेस का मैनिफेस्टो बनाता है। और कहीं ना कहीं तंज जो है वो कांग्रेस पार्टी पे और पी चिदम्बरम पे जो है किया गया है। उस पर आपका स्टेटमेंट क्या है, क्लैरिफिकेशन क्या है? पी चिदम्बरम किसके पीए रहे हैं मुझे तो नहीं पता। 6-7 बार के चुने हुए सांसद हैं, इतना मैं जानती हूँ। कहा कि मैनिफेस्टो पी चिदम्बरम ने बनाया क्योंकि उनकी कमेटी में बना हुआ है। गौरव वल्लभ ने ये बोला है कि एक पीए जो है वो मुझे कांग्रेस ऐसा का लगता मैनिफेस्टो है बनाता कि है। वो कायर लोग जो जंग के समय मैदान छोड़ के भाग खड़े होते हैं, वो विशुद्ध अवसरवादी लोग, उन पर मैं इस मंच पर से टिप्पणी नहीं करूंगी, लेकिन उनको आईना दिखाना जरूरी है और वो आईना मैं जरूर दिखाऊंगी। 2 महीने पहले तक जब बजट आया था तो मोदी जी की सारी बखिया वही उधेड़ रहे थे, उन्हीं को सब नजर आ रहा था। चैनल जंप कर करके अपने आप को स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स जो घोषित करता है, वो मुझे ये बताए कि स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स रहते हुए आपको इस देश में आर्थिक असमानता, बेरोजगारी, महंगाई नजर आ रही है कि नहीं नजर आ रही है? आपको 20% ये जनता 46 रुपए रोज पर गुजर बसर करती नजर आ रही है कि नहीं नजर आ रही है? इस तरह की बेहूदी
वाहियात टिप्पणी करना उनकी असलियत बयां करता है, हमारी नहीं। और असलियत यह है कि कांग्रेस ने इस देश के हाशिए पर रह रहे लोगों को हमेशा साथ दिया है। और मैं जरूर यहां पर, क्योंकि बड़ी धर्म की भी बात करने लगे हैं वो, उस पर मैं जरूर बोलना चाहती हूं। साच बराबर ताप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। यह है असलियत। झूठ बोलने वाले कभी भगवान के साथ नहीं खड़े हो सकते, वो विशुद्ध झूठे होते हैं, वो विशुद्ध अवसरवादी होते हैं, वो पहला मौका मिलने में बिलबिला के बाहर चले जाते हैं। ये असलियत है। और जो लोग ऐसा करते हैं उनको समाज किस दृष्टि से देखता है ये मुझसे बेहतर आप जानते हैं, मेरे मुंह से ज्यादा ना बुलवाइए। और असलियत एक ये है कि आज जो कहीं और जाकर कांग्रेस पार्टी को सनातन का पाठ पढ़ा रहे, उन्हें मुझे सिर्फ दो टूक बात यह कहनी है, भगवान के लिए भगवान का नाम झूठ मत लो। किसने आपको मना किया सनातन पर बोलने से? किसने आपको मना किया सनातन के खिलाफ बयान देने से? मैं पूछना चाहती हूं। मैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साथ, मैं सीडब्ल्यूसी की मेंबर हूं, मैं गई राम मंदिर, मुझे तो किसी ने कुछ नहीं कहा। और एक ये सच है, मैं यूजुअली पर्सनल बातें करती नहीं हूं, यह सच है कि भगवान शिव के बारे में जितना मैंने राहुल जी से सीखा है उतना किसी और से नहीं सीखा है। यह भी एक सच है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार करते हुए जब मैंने प्रियंका जी को निर्जल व्रत रखते हुए देखा और मैंने पूछा आप ये क्यों करती हैं, क्या है, उन्होंने बताया वो 8 साल की उम्र से नवरात्र का व्रत करती है। हमें चाहिए इंसर्ट सर्टिफिकेट सनातन पर। क्या है सनातन? सनातन यह है कि बिलबिला के भाग जाओ और फिर अनर्गल झूठ बोलने लगो। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। दूसरों पर टीका टिप्पणी करना, आपकी क्या हैसियत है, मैं ये जानना चाहती हूं। आपको पार्टी ने 2-2 राज्यों से चुनाव लड़ाया, लाखों करोड़ों कार्यकर्ता होते हैं, एड़ियां घिसते रहते हैं, नहीं मिलता है टिकट। आपको 2-2 जगह से चुनाव लड़ाया और आप इस तरह की अनर्गल बातें करेंगे। एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स थोड़ा आत्मचिंतन करिए और देखिए देश 10 साल में किस कगार पे पहुंच गया है, जो खुद आप भी कहते थे। मैं मणिपुर पे पूछ लूं? जी हाँ, पूछिए। मैं मणिपुर में पहले दूसरे चरण में जो है चुनाव है और वहाँ के अगर मतदाताओं से अगर बात करें, वहाँ कुछ लोगों ने, वहाँ के लोगों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारे लिए चुनाव का कोई मतलब नहीं है, चुनाव का अधिकार जरूरी, लेकिन हमारे लिए पहले जीवन का अधिकार जरूरी है। आपने अपने सवाल का मुझे लगता है बहुत बड़ा खुद ही जवाब दे दिया। आज हमारे देश को नरेंद्र मोदी इस कगार पर ले आए हैं कि मणिपुर की एक लोकसभा सीट पर 2 दिन वोट पड़ेगा। कभी सुना है आपने आजाद भारत की इतिहास में ऐसा होते हुए? एक लोकसभा सीट पर 2 दिन वोट पड़ेगा, क्योंकि समुदायों को एक साथ आप खड़ा देख नहीं पाएंगे। आज मणिपुर इस कगार पर है कि तमाम जगह इंटरनेट सस्पेंडेड है। आज मणिपुर इस कगार पर है कि अभी भी सेना की और वहां की पुलिस में झड़प होती है। आज मणिपुर इस कगार पर है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में मणिपुर के हमारे बहन और भाई कह रहे हैं इसका हमारे लिए क्या मतलब, हम जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं, हमारा जीवित रहना दूभर है, हमारी जान पर बनाइए। और सिर्फ मणिपुर ही क्यों, लद्दाख देखिए ना आप, सारा लद्दाख सड़कों पर है। सारा लद्दाख तथ्य और साक्ष्य दिखाकर कह रहा है चीन हमारे घर में घुसा बैठा है। चरवाहे दिखा रहे हैं साक्ष्य और तथ्य, और मोदी जी के मुंह में दही जमी है, उस दही पर जीएसटी लगा है। मोदी जी के मंत्री कहते हैं चीन बड़ी इकोनॉमी है, हम छोटी इकोनॉमी है। मोदी जी के मंत्री कहते हैं क्या फर्क पड़ता है, चीन नाम बदल रहा है, मैं आपके घर का नाम बदल दूं तो आपका घर मेरा थोड़ी हो जाएगा। अरे प्रभु, यह देश की संप्रभुता की बात है, यह हमारी भूभागीय अखंडता की बात है, यह आपका घर और मेरे घर की बात नहीं है। शर्म आनी चाहिए इनके लोगों को। सुप्रिया जी, एक संयोग ही है कि गांधी परिवार आज़ादी के बाद पहली बार जब वोट करने जाएगा तो कांग्रेस के सिंबल पर नहीं करेगा, उसको झाड़ू पर वोट करना पड़ेगा, और उधर केजरीवाल को कांग्रेस के सिंबल पर वोट करना पड़ेगा। तो क्या तकलीफ या कुछ? इंडिया ब्लॉक के सदस्य हैं तो तकलीफ क्यों होगी, साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। Ma'am, your alliance partner Shiv Sena's Mumbai candidate Amol Kirtikar has been summoned by Enforcement Directorate even as campaign is underway. Are you surprised at all? He was earlier Are you accused- surprised that anybody who is going to contest an election will be summoned by the ED, the CBI or the income tax? I am waiting for the multiple raids that are about to happen on candidates across the political spectrum in the Indian opposition. I am absolutely certain that people will be raided, ED will come, CBI will come, income tax will come. They will waste our precious time to campaign, because that is, please understand, Mr. Modi alone is not the star campaigner of the BJP. The star campaigner of the BJP, more than Narendra Modi, are ED, CBI and income tax. And that is what you're seeing. Are you surprised at all? But this is exactly what people of this country understand, and this is exactly why they will be taught a lesson. ठीक है मैम, एक सवाल है, प्रशांत अब हो किशोर गया।
एक सवाल है मैम प्रशांत किशोर के इंटरव्यू से, उन्होंने एक तो मैं कांग्रेस कंसल्टेंट्स की बात पर जवाब नहीं देती हूँ, राजनीतिक लोगों पे बात करिए, कंसल्टेंट्स की बात पे क्या जवाब देना है? जी हाँ, आपके अलायंस पार्टनर संजय सिंह की तरफ से ये बयान आया, उन्होंने बोला है कि अलायंस का एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होना चाहिए था, अलग से मैनिफेस्टो जारी करना सही नहीं है, क्योंकि लोगों में एक मैसेज देने की जरूरत है कि हम सब एक हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे सारे तमाम अलायंस पार्टनर्स इन्हीं समस्याओं पर बात कर रहे हैं, इन्हीं समाधानों की बात कर रहे हैं। उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा है मुझे नहीं पता, पर मुझे लगता है कि यही कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का भी खाका है। बहुत धन्यवाद आप लोगों का।